Yes students, today we have to start a new chapter, that is chapter number 10, cell cycle and cell division. Like the cell is independent in existence. If we talk about amoeba, if we talk about bacteria, but in case of multicellular, they start their life from a single cell that is known as zygote. Now this is a zygote. This zygote form 2 cell, 2 to 4 cell, 8 cell, and ultimately it form a, we can say, a complete plant or complete animal. So this single cell structure convert into a complete body by the process of cell division. So why cell division is necessary? So we can say, if we want a new cell, if we want a new organism, or if we want a new generation, so without cell we can say division is not possible. So according to Rudolf Virchow ने क्या कहा था कि omnis cellula e cellula. Rudolf Virchow ने कहा था omnis cellula e cellula means all new cells arise from pre-existing cells. So that means this process is known as cell division, or also we can say cell reproduction. Okay, so here we can say what is cell division. So we can say कि cell division formation of, या we can say reproduction of new cell from existing one. This is known as cell division. Okay, now there is a cell. If it has to divide and have to make 2 new cells, then what are the basic thing here? That means it has to divide its all the content. Like if there is a single membrane, तो 1 2 there are 2 membrane. If there is a 1 mitochondria, तो यहाँ पर mitochondria दोनों में 2 हो जाएगी. If there is 1 nucleus, तो यहाँ पर nucleus कितने हो जाएंगे? 2, because there are 2 cells. That means it has to multiply all its content before division. Sorry. A cell has to multiply all its content, चाहे वो membrane हो, चाहे वो wall हो, अगर wall है तो, चाहे वो nucleus हो, DNA, RNA, protein, whatever, endoplasmic reticulum, Golgi body, chloroplast, plastic, whatever, it has to multiply all the things just before division. When it will, we can say multiply all the things, then it will divide into 2 new cells. Okay, तो क्या प्रोसेस होगा इसमें कि it has to multiply all its content. After that it will eventually divide into 2 new cells. Okay, now see, the old cell is known as mother cell, and the new cell is known as daughter cell. ये मदर डॉटर होता है, फादर और सन नहीं होता. सेल को हम एज ए वी कैन से वो क्या कहते हैं उसको, स्त्रीलिंग के ऐसे यूज करते हैं. ओके, ऐसे फेमिनिन यूज करते हैं. इंग्लिश में आप कहीं पढ़ोगे इसको. सो मदर सेल. ओके, सो देयर इज ए मदर सेल, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल. नाउ सी हियर, द क्रोमोसोम नंबर इज हियर, like there is a chromosome number 46. If we talk about human cell, then there are 46 chromosomes. Then in next cell there is also 46 chromosomes, there is also 46 chromosomes. Now here is chromosome 46, in daughter cell 46. Now ये कैसे हुआ? Because there is a, we can say, replication.
or duplication of these chromosome takes place. तब इसका रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन हुआ तभी ये 46 टू ये कितना हुआ 90, दैट मीन्स ये हो गया 92, बट 46 46 अलग अलग सेल में चलाएगा. दैट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मदर सेल देयर वुड बी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स. ओके, एक तो ये बात ध्यान रखनी है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सम conceptual terms like there is a word known as ploidy. Ploidy mean the total number of sets of chromosomes in a cell. Total number of set of chromosome. If we talk about human cell or our cell, no general cell, then it is a diploid cell, or we can say diploid structure. Here di means 2, ploidy mean total number of set of chromosome. So we can say 2 sets of chromosome. 2 set of chromosome का क्या मतलब है कि that means all 23 chromosomes are in पेयर. किसमें है? पेयर में है. वी हैव स्टडीड इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कि देयर आर होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक तो क्रोमोसोम ये हो गया क्रोमोसोम 1 2 3 4, दिस इज द वन सेट, देन 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, दिस इज द सेकेंड सेट. तो कितने सेट हो गए? 2. तो दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज डिप्लॉइड सेल, इज नोन एज ए डिप्लॉइड सेल. So diploid cell is also we can say known as a somatic cell, known as somatic cell. तो somatic cell में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डिप्लॉइड होता है, एंड दिस डिप्लॉइड इज रिटन एज 2n. इस प्लॉइड को हम लिखते हैं n. इफ देयर इज वी कैन से डिप्लॉइड तो ये होगा 2n. इफ देयर इज ट्रिप्लॉइड तो ये होगा 3n. इफ देयर इज टेट्राप्लॉइड देन ये होगा 4n. ओके, इफ देयर इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम तो इसको बोलते हैं हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन हाफ, तो उसको डिनोट करते हैं सिंगल n से. ओके, नाउ सी प्लॉइडी. सो देयर इज diploid cell and other is haploid cell. This diploid cell is denoted as 2n, this haploid cell is denoted as n. क्लियर है? अब ये diploid cell कौन सी होती है कि somatic cells are diploid. Somatic cell and other type of cells are known as gametic सेल्स. गैमेटिक सेल का मतलब है गैमीट्स, और गैमीट्स का मतलब है स्पर्म एंड ओवम. यानी कि एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम रेस्ट सेल आर इन आवर बॉडी इज नोन एज ए सोमैटिक सेल. तो सोमैटिक सेल्स कौन सी होती है? एक्सेप्ट गैमेट सेल, ऑल cells are somatic cells. बात समझ में आई या नहीं आई? तो प्लॉइडी, डिप्लॉइड सेल, देन हैप्लॉइड सेल. डिप्लॉइड मीन 2n, ये किस में होती है? सोमैटिक सेल में. सोमैटिक सेल मीन गैमेट को छोड़ के जितनी भी सेल है हमारी बॉडी में, लाइक देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, देन एक्सेप्ट स्पर्म इन ह्यूमन मेल एंड ओवम इन ह्यूमन फीमेल, रेस्ट ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड. ओके, और उन डिप्लॉइड सेल्स को बोलते हैं हम क्या? सोमैटिक सेल्स. तो सोमैटिक सेल्स के अलावा जो सेल है उनको बोलते हैं गैमेटिक सेल. ओके, और सम टाइम जर्म सेल भी वर्ड यूज करते हैं हम. इट्स क्लियर और नॉट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, वन इज डिप्लॉइड सेल एंड अदर इज हैप्लॉइड सेल्स. नॉट डाउट टिल हियर. अब देखो
Now, there are two types of cell division. We have to discuss detail of type of, बस एक बार बताने के लिए कह रहा हूं. One is known as mitosis and other is known as meiosis. अब जो माइटोसिस है वो होती है सोमैटिक सेल में. किसमें होती है? सोमैटिक सेल में. तो क्रोमोसोम नंबर ऑफ सोमैटिक सेल इज 2n. यहां पर एक डिवीजन होगी दैट इज नोन एज माइटोसिस. तो फ्रॉम one cell that is 2n cell, so there is a formation of 2 cell of 2n. ओके, तो यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मदर एंड डॉटर सेल्स आर सेम. मदर एंड डॉटर क्रोमोसोम नंबर आर सेम है. बट इन मियोसिस क्या होता है? दिस अकर इन गैमेट मदर सेल, जो गैमेट मदर सेल होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल. कितनी सेल बनेगी? 4 सेल. लेकिन ये जो मदर सेल थी ये थी 2n, लेकिन ये रहेगी सिर्फ n. Here I am taking example of sperm mother सेल का. तो एक सेल से कितनी सेल बनती है? 4. और यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हो जाएगा हाफ. क्लियर है? तो इसमें क्या होगा कि देयर इज ए डिफरेंस इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मदर एंड डॉटर सेल्स. तो ये जो डॉटर सेल है ये तो है हमारी डिप्लॉइड. तो ये जो डॉटर सेल्स है ये हो जाएंगी हैप्लॉइड. इज क्लियर और नॉट? तो ये हैप्लॉइड हो जाएगी. ये हैप्लॉइड क्यों होती है? क्योंकि एक यहां पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है स्पर्म का, ऐसा ही n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है किसका? एग का. तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये वापिस क्या हो जाता है? 2n हो जाता है जब जाइगोट बन जाता है. ओके, अदरवाइज ये ऐसा नहीं होता. तो ये भी 2n होती, ये भी 2n होती, और नेक्स्ट जनरेशन में स्पर्म और ओवम फ्यूज करते तो 4n हो जाता. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था ह्यूमन की सेल में. ओके, देयर आर सम सेल इन प्लांट सेल जो 3n है. देयर आर सम प्लांट्स जो 4n है, जो 6n है. प्लांट्स में ऐसा है बहुत सारे केसेस में, बट ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं है. और दैट मीन्स दिस इज नॉट ए जनरल केस. ऐसा जनरल केस नहीं है गैमेट के लिए. दैट मीन्स फॉर जाइगोट के लिए हमें हैप्लॉइड सेल ही चाहिए होती है हर जगह. इज क्लियर और नॉट? तो दिस इज नॉन एज माइटोसिस, दिस इज नॉन एज मियोसिस. नाउ दिस माइटोसिस इज नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल मीन इक्वल. दैट मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मदर सेल एंड डॉटर सेल क्या है? सेम है, इक्वल है. तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज इक्वेशनल. बट दिस मियोसिस इज नॉन एज रिडक्शनल. इज नॉन एज रिडक्शनल डिवीजन. तो रिडक्शनल डिवीजन का क्या मतलब है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज ए रिडक्शनल डिवीजन. तो मेजर डिफरेंसेस क्या है? यहाँ पर 2 सेल बनती है, यहाँ पर 4 बनती है. यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? डिफरेंट रहता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस. वी हैव टू डिस्कस डिटेल अबाउट व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मियोसिस. कि ये कैसे हो गया, नंबर कैसे सेम रह गया, इसमें कैसे नंबर हाफ हो गया, इसमें कैसे 4 बनी और इसमें कैसे 2 ही बनी. ओके, दैट वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल. इज क्लियर और नॉट? तो हमने क्या पढ़ लिया? हैप्लॉइड पढ़ लिया, डिप्लॉइड पढ़ लिया, रिडक्शनल डिवीजन. ओके, देन मदर सेल, डॉटर सेल, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल. ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि सेल डिवीजन क्या है. उसके बाद हमारे पास सोमैटिक सेल क्या है, जर्म सेल क्या है,
देन हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, देन माइटोसिस क्या है एंड मियोसिस क्या है. ओके, नाउ देयर इज अनदर concept that we have to understand, like the main event in cell division is DNA replication. DNA replication. DNA किस पे प्रेजेंट होता है? DNA प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन में, और क्रोमेटिन से फिर क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है. यानी कि ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, डीएनए रेप्लिकेशन है, ये एक ही बात है इन जनरल में. हालांकि डीएनए अलग चीज है, बट दिस डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमेटिन. तो हम ये कह देंगे अगर ये डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा तो ये क्रोमेटिन भी रेप्लिकेट कर जाएगा. अगर ये क्रोमेटिन रेप्लिकेट करेगा तो क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट कर जाएगा. क्लियर है? नाउ सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ chromatin fiber. Okay, now this is a chromosome. Okay, now in this chromatin there is DNA. तो ये है बिफोर डुप्लीकेशन, बिफोर डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन. दिस क्रोमेटिन इज द स्ट्रक्चर. जो एक सिंगल थ्रेड दिख रहा है, मैं सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बना रहा हूं यहां पर. दिस इज ए सिंगल थ्रेड इज द डीएनए और द क्रोमेटिन बिफोर डीएनए डुप्लीकेशन. ओके, जब इसका डुप्लीकेशन होगा, जब इसका क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा, तो ये ऐसे की जगह बन जाएगा ऐसा. तो दैट मीन ये क्या है? क्रोमेटिन आफ्टर डीएनए डुप्लीकेशन. ओके, तो इसको मैं क्या बोलूं कि ये क्या है हमारे पास? मदर स्टैंड बोल दूं उसको सही में. ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट. या इसको मैं बोल दूं ये तो है ओरिजिनल, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? ओरिजिनल. लेकिन ये जो थ्रेड है ये हो गया इसका डुप्लीकेट. ओके, नाउ वी नो दैट दिस chromatin structure undergoes condensation, और वी कैन से ये कंडेंस्ड हो जाएगा, और वी कैन से पैक्ड हो जाएगा. ओके, तो पैक्ड होने के बाद ये ऐसे सॉलिड रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम. दैट इज नोन एज क्रोमोसोम. लाइक दिस. तो दिस स्ट्रक्चर इज आर chromosome. Okay, now we count the number of chromosome के 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 46 है. वो ये स्ट्रक्चर है. That means this is the chromosome number 1 or only 1 chromosome. Now take here there are 2 chromosome, that means pair of chromosome. तो ये ले लो कि इसका हो गया ऐसे पेयर. ओके, तो दिस इज ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, तो यहां पर भी कितने होंगे? एक ये था, एक ऐसा और हो जाएगा. तो यहां पर जैसा एक ये था, इसी के जैसा एक और बन जाएगा. ओके, सो हियर वी कैन से दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 1. This is chromosome number 1 dash. This is chromosome number 1. This is chromosome number 1 dash. This is chromosome number 1. This is chromosome number 1 dash. तो हम जो चीज काउंट करते हैं वो ये क्रोमोसोम करते हैं. 1 2
तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर 2, हाउ मेनी पेयर्स 1। तो मैं इसको ऐसे कहूं कि क्रोमोसोम कितने हैं 2, अगर मैं ऐसा कहूं पेयर कितने हैं तो मैं कहूंगा 1। ओके, नाउ दीज टू स्ट्रक्चर में क्या है कि एक तो ओरिजिनल कॉपी है, एक क्या है डुप्लीकेट है। यहाँ पर एक ओरिजिनल कॉपी, एक क्या है डुप्लीकेट है। अब देखो यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तुम्हें 1 2, और यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है 1 2, यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है 1 2। दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट सेपरेट स्ट्रक्चर कितनी है, एक है। अब इसमें देखो दिस इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर इज विदाउट डुप्लीकेशन, दिस इज विद डुप्लीकेशन बट नॉट कंडेंस्ड, दिस इज विद डुप्लीकेशन बट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। बात समझ में आई है? तो यानी कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। यहाँ पर कितने नंबर है 1 2, यहाँ पर कितने नंबर है 1 2। यानी कि इस प्रोसेस से लेकर इस प्रोसेस तक देयर इज नो चेंज इन नंबर। अब देखो यहाँ पर ये चीज समझनी जरूरी है, यानी कि फ्रॉम दिस प्रोसेस टू दिस प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और वी कैन से क्रोमेटिन। बट क्या हुआ, जो मटेरियल था बट वी कैन से मटेरियल गेट डबल्ड। जो सब्सटेंस था यानी कि जो क्रोमेटिन था यहाँ पर ऐसा था, ये क्या हो गया डबल हो गया। डबल क्यों हो गया कि एक ओरिजिनल कॉपी थी, एक डुप्लीकेट आ गई ड्यू टू हियर वी कैन से डीएनए डुप्लीकेशन। ओके, तो यानी मैं ये कहूं कि दिस सेल लाइक दिस सेल इज 2n, तो ये सेल इस फेज में भी क्या है 2n है, ये सेल इस फेज में भी क्या है 2n है। ठीक है, अगर मैं इस मटेरियल को ऐसे लिखूं कि ये कोई कंटेंट है और इस कंटेंट को मैं डिनोट करता हूं C से। ओके, तो यहां पर जो ये कंटेंट है ये है 2C। कितना कंटेंट है 2C, लेकिन यहां पर जो ये कंटेंट है ये 2C की बजाय हो गया 4C। कंटेंट कितना हो गया 4C, और यहां पर भी ये कंटेंट कितना है 4C। क्लियर है? देखो दिस n इज फॉर नंबर, यहां पर नंबर 1 एंड 1 डैश कितने हैं टोटल 2 है। यहां पर भी नंबर एक स्ट्रक्चर ये है, एक जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है। लाइक मैं ये कहूं कि हाउ मेनी आर दी सेपरेट स्ट्रक्चर, तो ये क्या है 2 है। अगर मैं ये कहूं कि आपको कितनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो दिस इज द ओनली वन ना, जुड़ी हुई है तो है तो एक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सेम ही ऐसा है लाइक दिस, इन दिस फेज ये स्ट्रक्चर थे ऐसे, तो हाउ मेनी आर देयर 1 2, बट आफ्टर डुप्लीकेशन ये हो गया लाइक दिस, तो अब भी कितने स्ट्रक्चर है 1 2। इज क्लियर और नॉट? बट क्या था, ये जो कंटेंट था अब उससे ये कंटेंट क्या हो गया डबल हो गया, तो कंटेंट को मैंने नाम दिया C, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को नाम मैंने दिया N, तो दिस इज N 2N हो गया, बट कंटेंट 1C 2C 3C 4C, तो यानी कि 2N इज इक्वल टू 2C बिफोर डुप्लीकेशन, आफ्टर डुप्लीकेशन 2N इज इक्वल टू 4C, और ये जो फुल्ली कंडेंस्ड हो गया तो 2N इज इक्वल टू 4C। यानी कि कंटेंट डबल हुआ है बट देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, देयर इज ओनली वी कैन से कंटेंट इज डबल बट देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। क्लियर है? ये क्रोमेटिन था, 2 है यहाँ पर 1 और 1 डैश, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। डुप्लीकेशन होने के बाद ऐसा हो गया, कंडेंस होने के बाद ऐसा हो गया, तो हमें यहाँ कितनी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस फेज पे 1 2, यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है 1 2, यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है 1 2, तो देयर इज नो चेंज इन नंबर में तो चेंज नहीं आया, बट
2C कंटेंट क्या, वन कंटेंट अदर कंटेंट, तो यहाँ पर ये कंटेंट हो गया डबल और ये कंटेंट कंडेंस हुआ तो ये भी हो गया डबल। बट हमें क्या याद रखना है कि ये तो हमारा क्या था, ओरिजिनल था, और ये क्या था हमारे पास, डुप्लीकेट। ऐसा ही सेकंड में, ऐसा ही थर्ड में, ऐसा ही फोर्थ में, ऐसा ही फिफ्थ में, ऐसा ही सिक्स में, 46 क्रोमोसोम तक ऐसा ही होगा। इस क्लियर, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम हमें हमारे सेल में देखते हैं 46, और हर एक क्रोमोसोम में एक साइड की ओरिजिनल कॉपी है, एक साइड की डुप्लीकेट है। और ऐसे इसी क्रोमोसोम का जैसा एक और क्रोमोसोम है, तो ये पेयर को हम बोलते हैं होमोलोगस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है। इस होमोलोगस में एक हमें फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है, क्योंकि जो स्पर्म है वो क्या है, एन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझना एक बार। ओके।